So in previous class, we are discussing about the SQL injection, that is the web penetration testing parts, and today we are going to discuss about a firewall. Okay, so in this topic, I'm just going to tell you like what is firewall, what is IDS system, what is IPS system, and how to detect a particular attacker once the any type of intruder is basically coming in your network, and that is sent in by the any type of attacker. So how do you detect that? By the using of different types procedure, you can say that is a honeypot. So कैसे करोगे वो हम यहाँ पे आज के टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फायरवॉल। फायरवॉल होती क्या है ये समझ लेते हैं। A firewall is a component which is used to filter the incoming and the outgoing or inbound or outbound rules of a particular network. किसी भी फायरवॉल है क्या एक तरीके कंपोनेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फिल्टर्स का यूज करते हैं किस पे, इनकमिंग एंड आउटबाउंड पैकेट्स के ऊपर, जिसमें हम रूल सेट यूज करते हैं किसका, इनबाउंड एंड आउटबाउंड का, जो कि क्या किस पे सेट होता है, नेटवर्क के ऊपर। A firewall is having a database of signature for the data packets moving inside or outside of a network. जो भी डेटा पैकेट आपके नेटवर्क के अंदर आते हैं, आपके नेटवर्क से जाते हैं, उनको चेक करने के लिए क्या चीज यूज करी जाती है, डेटाबेसेस के सिग्नेचर्स होते हैं। डेटाबेस होता है इसमें सारे सिग्नेचर्स मेंशन होते हैं। सिग्नेचर्स के बेसिस पे क्या करता है फायरवॉल, आपके डेटा पैकेट को एनालाइज करता है। The data packet moving in a network traffic having a malicious content can be blocked by a firewall according to the rule set created by the network administrator. यहाँ पे होता क्या है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरीके के रूल सेट क्रिएट करता है, चाहे वो इनबाउंड पे करे चाहे वो आउटबाउंड पे करे, उसी के अकॉर्डिंग फायरवॉल आपकी डेटा पैकेट को आने से और जाने से रोकती है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटी सी वीडियो रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि फायरवॉल एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business host. What is a firewall? Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on a network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them, because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side, and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other side of the firewall and cause harm to a private network. So in today's high-tech world, a firewall is essential to every home, and especially in a business or an organization, to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming network data and determines by its rules if it's allowed to enter a network. And these rules are also known as an access control list. These rules are customizable and are determined by the network administrator. The administrator decides not only what can enter a network, but also what can leave a network. So these rules either allows or denies permission. So as an example here, we have some rules in a firewall's access control list, and it shows a list of IP addresses that have been allowed or denied by this firewall. And as you can see, traffic from some IP addresses are allowed to enter this network, but traffic from one IP address has been denied.
So if traffic from this IP address try to get into this network, the firewall will deny it because of the rules that are set in the firewall. But the other IP addresses are granted access because the rules allow them. Now, firewalls don't just make rules based on IP addresses, but they can also make rules based on domain names, protocols, programs, ports, and keywords. So let's say in this example, the firewall rules are controlling access by port numbers. And let's say that the rules have allowed incoming data that's using port number 80, 25, and 110, and the data using those ports have been given access to this network. So any incoming data that's using those ports can pass through the firewall. But also in this firewall, the rules have denied any data that's using port numbers 23 and 3389. So any incoming data that's using those port numbers, the firewall will deny access and it won't get past the firewall. So in a nutshell, this is how firewalls basically work. Now firewalls do... सर मैं आए हाँ सर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल के पहले। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फायरवॉल की, तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल। सबसे पहली होती है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल, और दूसरी होती है जिसे बोलते हैं हम हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। So if I am talking about the software based firewall, so these are the firewall which is in the form of application or a software which is having a rule set of inbound and outbound traffic coming from the network that is based on the like Windows firewall, Linux firewall and the IP tables. तो यहाँ पे होता क्या है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है आपकी, इसको हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं, ठीक है, HOST। तो होस्ट बेस्ड फायरवॉल यहाँ पे काम किस तरीके से करती है, जितने भी नेटवर्क आपके पर्टिकुलर उसमें आ रहा हो आपके नेटवर्क के ऊपर, जो भी इंट्रूडर आपका आता है नेटवर्क के ऊपर, उसको डिटेक्ट करती है एंड डिटेक्ट में जो भी आपने रूल सेट बना रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको या तो इनेबल करेगी या तो डिसेबल करेगी। तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप ये समझो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आपको मिलती कहाँ पर है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आपके सिस्टम के अंदर होती है, जिसको आप विंडोज के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको फायरवॉल मिल जाएगी। जस्ट ओपन दिस फायरवॉल सिक्योरिटी, एंड दीज आर द इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है, रूल सेट। तो यहाँ पे रूल सेट है, तो अभी रूल सेट हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होती है ये किस टाइप की होती है, इसे बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। क्यों? A hardware based firewall is a peripheral which is having a system box with a processor and giving us a configuration panel and having more advanced feature from a software based firewall। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इज जस्ट लाइक एक बॉक्स सीधा होता है जिसके अंदर अलग अलग आपके क्या होते हैं, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस हम सेट करते हैं, ठीक है। सो हार्डवेयर फायरवॉल में क्या होता है, आपका एक सिस्टम बॉक्स जस्ट लाइक अ राउटर या स्विच की टाइप से होता है आपका, जिसके अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, और कॉन्फ़िगरेशन जो होती है सेटिंग वो आपकी काफी एडवांस्ड होती है होस्ट बेस्ड फायरवॉल या सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के मुकाबले। तो इसके लिए जैसे जुनिपर की फायरवॉल आती है, सोफिस की फायरवॉल आती है, या फिर इंडियन फायरवॉल्स आती है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स हैं। तो अगर आप इनको चेक करना चाहो, जैसे सिस्को की आती है, फोर्टिनेट की आती है। So if I'm going to show you like Fortinet firewall, so just look at here. So this is a firewall, ये जो सबसे ऊपर रखी है ये क्या है, फायरवॉल है। किसकी फायरवॉल है, आपकी Fortinet की फायरवॉल है। अगर आप ये देखोगे, now look at here, this is a firewall of Fortinet, है ना। कितने प्राइस की है, 32,500 की है ये, देखो। Fortinet फायरवॉल, ये जो फायरवॉल आपको दे रहा है 100E UTM फायरवॉल, 100 यूजर्स के लिए, अप टू 100 यूजर्स, 100 यूजर्स आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, और इसकी कॉस्ट है 1,67,480 रुपए, केवल इतने से बॉक्स की। इससे 100 यूजर आपको आराम से हैंडल हो सकते हैं। तो जितना बड़ा कंपनी का नेटवर्क उतनी बड़ी आपको फायरवॉल वहां पे यूज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे सिस्को की फायरवॉल डालूं, so now just look at here, this is a Cisco firewall, सिस्को की फायरवॉल। इसकी क्या कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 42,000। आप जिसकी चाहो, जिस कंपनी की चाहो उस कंपनी की, लाइक ये Amazon की है,
Amazon पे मिल रही है AS5X, है ना, फायर पावर सर्विसेज, सिस्को का ये भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी दिखा रहा है। तो ये क्या है, ये आपके हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल कराते हैं, इनसे नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल भी कहते हैं। इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन बेटर होती है, हाई कॉन्फ़िगरेशन पैनल होता है, इसमें आप बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हो ऑन द ऑटोमेशन वे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो वीडियो देखते हैं, वो हम जो हमने डिस्कस करी है टाइप ऑफ फायरवॉल, वही हम अब यहाँ पर देखेंगे। One type is called a host-based firewall, and this is a software firewall. This is the kind of firewall that is installed on a computer, and it protects that computer only and nothing else. So, for example, later versions of Microsoft operating systems come pre-packaged with a host-based firewall, and you can see that example here. And there are also third-party host-based firewalls that can be purchased and installed on a computer. So, for example, Zone Alarm, which is a popular third-party host-based firewall. And also a lot of antivirus programs will have a built-in host-based firewall. And another type of firewall is called a network-based firewall. A network-based firewall is a combination of hardware and software, and it operates at the network layer, and it is placed between a private network and the public internet. But unlike a host-based firewall, where it only protects that computer, a network-based firewall protects the entire network. And it does this through management rules that are applied to the entire network so that any harmful activity can be stopped before it reaches the computers. Now, network-based firewalls can be a standalone product, which is mainly used by large organizations. And they can also be as a built-in component of a router, which is what a lot of smaller organizations rely on. Or they can also be deployed in a service provider's cloud infrastructure. Now, a lot of organizations will use both network-based and host-based firewalls. They will use a network-based firewall to protect the entire network as a whole, and they will also use host-based firewalls for their individual protection for their computers and servers. And by doing this, it'll ensure maximum protection. Because if harmful data just so happens to get past the network firewall, the host-based firewalls on each computer will be there to stop it. So thank you everyone for watching this video on. सर मैं आया गाइस, होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। यस सर। नो, अब एक और देखते हैं, ये भी आपको टाइप्स ऑफ, और यहाँ पे आपको अब 2-3 तरीके की और फायरवॉल पता चलेंगी, जैसे कि आपकी हो गई एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल एंड प्रॉक्सी फायरवॉल, जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल भी बोलते हैं, जिसे हम एक तरीके पैकेट फायरवॉल बोलते हैं। एंड उसके बाद एक और तरीके फायरवॉल होती है हाइब्रिड फायरवॉल। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में जो नेटवर्किंग टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल जो होती हैं वो बेसिकली हम जो पैकेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके डेटा पैकेट लेके जाते हैं। कोई भी डेटा हमें सेंड करना है, पैकेट की फॉर्मेट में सेंड होगा ओवर द नेटवर्क। तो वो जो नेटवर्क के ऊपर आपका डेटा सेंड हो रहा है पैकेट की फॉर्मेट में, जैसे सपोज करो 100 MB का डेटा आप सेंड कर दो, तो 100 MB का डेटा डेस्टिनेशन पॉइंट पे पूरा 100 MB में डाउनलोड नहीं होगा। क्या होगा, वो आपके सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फ्रेगमेंट्स उसके डिवाइड होंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाएंगे, जिसमें वो डेटा जो है लाइक 5-5 MB के फॉर्मेट में हो सकता है, या 2-2 MB के फॉर्मेट में क्या होगा, रिसीव होगा उसके एंड डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जिससे वो डाउनलोड कर सकता है। अब उस केस में होगा क्या वहां पे, कि जब वो पैकेट रिसीव कर रहा है तो पैकेट में एक दो सेक्शंस होंगे। पहला होगा हेड सेक्शन, जिसे हम हेडर पार्ट बोलेंगे, और दूसरा सेक्शन होगा जो हमारा बॉडी कंटेंट सेक्शन है। तो हेड सेक्शन के अंदर आपका आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी डिटेल्स होंगी कि कहां से आया कहां पे गया, एंड जो डेस्टिनेशन जो बॉडी कंटेंट होगा उसके अंदर आपका एप्लीकेशन में कोई भी डेटा हो सकता है, पेलोड वगैरह हो सकता है। तो जब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है वो केवल आपके हेडर को चेक करती है, रिप्लेसमेंट टू चेक या आइदर टू चेक ऑफ द कंटेंट पार्ट ऑफ द होल पैकेट। बट जो आपकी फायरवॉल होती है, क्या कहते हैं, आपके किस टाइप की एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल, वो आपके कंटेंट को भी चेक करती है। तो अगर उसमें किसी भी टाइप का इंट्रूडर है या किसी भी टाइप का वायरस है तो उसे भी डिटेक्ट कर लेगी। प्लस हाइब्रिड फायरवॉल क्या होती है, इसमें दोनों तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि उसमें आपका
पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी लगी है एंड दूसरी आपकी जो है वो वाली फायरवॉल भी है, एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल भी है। तो दोनों चीज चेक कर लीजिए, हेडर भी चेक करेगी और उसका बॉडी कंटेंट भी चेक करेगी, ठीक है। Hey guys, this is DG. Today, So we are let's going see. to understand different types of firewalls and decide which firewall will best suit you as per your implementation environment. So let's start. Firewalls protect our computers from internet hackers. Internet hackers can steal our bank details from our computers and can reduce our bank balance from thousands of dollars to zero within seconds. So firewall is must in a computer or in a computer network. There are three types of firewalls: packet filtering firewall, application or proxy firewall, and hybrid firewall. Before starting with firewall types, you should know what are data packets. When we want to download a file of size say 200 MB of internet, we will not receive the entire 200 MB data at once, but we will receive small packets, say 5 MB every second. Some of the part of this 5 MB packet is occupied with information like which computer together form a data packet or IP packet, and this part of actual data is called payload. Now we can start with firewall type, starting with packet filtering firewall. Suppose I am downloading a file from internet. When the data packet arrives in packet filtering firewall, it only checks the sender's and the receiver's IP address and the port number present in the data packet. The rules written in a list called access control list are used for data packet verification. If everything is okay, then the data packet is allowed to pass through packet filtering firewall and then to my computer. But what is port number? Actually, these are some digits written after IP address separated with a colon and are used for the successful data packet transfer. The packet filtering firewall is already present in internet routers, so they are the cheapest and the quickest way to implement. The only limitation of packet filtering firewall is that it do not check the data portion, that is payload of the data packet. So a hacker could send some malicious data packed in this payload section. Hence, packet filtering firewalls provides low security. The second one is application or proxy firewall. Let us understand it with an example. Suppose your mom asked you to buy a pen from the market. You go to the shop, buy the pen, come home back and give the pen to your mom. Here, you had done the work that your mom wanted you to do without letting the shopkeeper knew who actually wanted that pen. Same is the case with application or proxy firewall. Replace the shopkeeper with internet, your mom with personal computer, and yourself with proxy firewall. Like, you did not let the shopkeeper knew that your mom was the one who actually wanted that pen. Similarly, proxy firewalls do not let the internet know which computer actually wants to visit the requested website. That is, proxy firewalls hides us from attackers in internet. Let us understand this whole process. User enters the website www.facebook.com in the web browser. Proxy firewall receives the request and forwards that request to internet. The web server in internet receives the request and responds back to the proxy firewall with the requested information. The proxy firewall receives the information and forwards it to the original client for his viewing pleasure. In this whole process, web server thinks that proxy firewall is the one who wants to visit www.facebook.com. That is, proxy firewalls do not let the web server know the origin of the request. So, proxy firewalls protect us from the potential attackers in internet by not disclosing our computer's identity, or I should say, by not disclosing our computer's IP address. Since application firewalls also check the payload of the received data packet, so they are generally much slower than the packet filtering firewall. Third is hybrid firewall. Hybrid firewalls combine packet filtering firewall and application firewall in series to enhance the security. If they are connected in parallel, then the security of the connection will be reduced to the parameters defined by packet filtering firewall. That is, application firewall will be of no use if the two firewalls are connected in parallel. For this reason, hybrid firewalls use packet filtering and application firewall in series. As a result, hybrid firewalls provide best security compared to packet filtering and application firewalls. Now, which firewall will be best for us will depend on its implementation environment. For example, packet filtering firewall will be best for low-risk environment like low-risk shop. Application firewall will be best for medium-risk environment
like universities. And hybrid firewalls will be best for high-risk environments like hospitals, whose database contains important reports of the patients. Now, you can choose a firewall as per your need. If you have learned something from this video, then please like this video, share this video. गाइस समझ में आया? यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी काम करती हैं कौन सी एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल और आपकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और आपकी हाइब्रिड फायरवॉल, राइट? Okay, so let's discuss about the next thing, that is IDS and IPS system. So IDS and IPS system होता क्या है? IDS stands for Institution Detection System. It is a software or a hardware based program which detect a suspicious activity and create a log for it. देखो जो ये वाला IDS and IPS होता है, ये मोस्टली आपको अवेलेबल कहाँ पे मिलता है? आपके हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल में, या फिर आप एडिशनल जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल यूज करो लाइक स्नॉट टाइप, जो कि आपकी थर्ड पार्टी फायरवॉल है, या फिर आपको जोन अलार्म जो उसने बताई थी, तो अगर आप उनका यूज करते हो तो उसमें आपको ये चीज मिलती है आईडीएस एंड आईपीएस का। ये करता है कि आईडीएस इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ये आपका सबसे पहले अगर नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इंट्रूडर आता है तो उस इंट्रूडर को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके उसको सस्पिशियस एक्टिविटी बता के उसका एक लॉग फाइल क्रिएट कर देगा। फिर उस लॉग फाइल को इट कैन बी क्रिएट अ लॉग फाइल एंड सेंड इमीडिएटली टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और जो लॉग फाइल है उस फाइल को आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को तुरंत सेंड कर देगा, so that they can find out that there is an intruder in our network, ताकि वो उसमें से पता लगा सके कि कहाँ पे इंट्रूडर आया है और क्या आया है। It can be determined by the different phase या different types such as the NIDS यानी नेटवर्क IDS सिस्टम, HIDS होस्ट IDS सिस्टम एंड द वायरलेस IDS जो कि आपके राउटर्स में होता है, वायरलेस डिवाइसेस में, तो उसमें भी होता है IDS सिस्टम जो डिटेक्ट करता है, तो आप वहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट है IPS। तो IDS समझ में आया, करता क्या है? कोई भी इंट्रूडर आया तो उस इंट्रूडर को डिटेक्ट करेगा, उसकी लॉग बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर देगा, ठीक है। अब जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर एक्शन लेगा तब तक उसे प्रिवेंट करने का काम भी तो कोई ना कोई करेगा, तो उसे बोलते हैं आईपी प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस। तो आईपीएस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है आपका? इट एक्ट्स एंड वर्क्स by preventing the intruder which have been doing malicious and illegal activities in the network or with their clients immediately. जो भी उसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उनसे प्रोटेक्ट करेगा, उनको रोकेगा, एंड प्रिवेंटिंग के साथ साथ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको बताएगा कि ये नेटवर्क के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो वो कौन काम करता है? आईपीएस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो आईडीएस एंड आईपीएस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज अ स्नॉट। तो स्नॉट यूज करोगे तो वो आपको क्या दे देगा? एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आईडीएस एंड आईपीएस की। क्लियर है गाइस? यस सर। इसको करने के लिए हम जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। So I'm just going to share my another screen so you will see the practical part. So देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे Windows 7 लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि इस पे हम देख सकें। यहाँ पे आपको अपनी फायरवॉल ओपन कर लेनी है, सेटिंग्स। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटीज में। यहाँ से हम क्या करेंगे कि आउटबाउंड एंड इनबाउंड रूल सेट है, देखो अलग अलग रूल सेट यहाँ पे क्या करेंगे डिजाइन किए गए। तो आप यहाँ से रूल सेट देख सकते हो, जो टिक है ग्रीन हो रखे हैं वो रूल सेट इनेबल है, अदरवाइज बाकी के जो है वो डिसेबल हो रखे हैं, ठीक है। तो आप रूल सेट यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन से इनेबल है एंड कौन से डिसेबल रूल सेट है, ठीक है। प्लस अलाउ कौन से, डिनाई कौन सा। जैसे इन पे मैंने क्लिक करा राइट क्लिक तो डिसेबल रूल बता रहा है बिकॉज़ ये इनेबल था। मैं इस पे करता हूं तो ये मुझे बता रहा है इनेबल करने के लिए कह रहा है कि रूल को क्या करो इनेबल करो, ठीक। अब यहाँ पे हम नया रूल सेट बना सकते हैं, कैसे बनाना होता है नाउ लेट्स सी। जैसे मैंने आउटबाउंड पे चला गया, मैंने क्या न्यू यूआरएल न्यू रूल सेट बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप प्रोग्राम बेस्ड रूल सेट बना सकते हो, कोड बेस्ड रूल सेट बना सकते हो, प्री डिफाइंड रूल सेट कोई बना सकते हो किसी उससे, या फिर आप कस्टम बना सकते हो। तो लेट अस सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज अ कोड बेस्ड। नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। कह रहा है टीसीपी पोर्ट पे बनाना है यूडीपी, मैंने कहा जी टीसीपी पोर्ट पे बनाओ। कह रहा है ऑल रिमोट पोर्ट सारे या फिर स्पेसिफिक, मैंने कहा जी स्पेसिफिक ले लो। 80 ले लेते हैं हम एंड कॉमा 443 ले लेते हैं। हमने दो पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए
80 and 440। अगर आप रेंज देना चाहते हो तो आप इस तरीके से रेंज भी दे सकते हो हाइफन लगाकर, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा रखा है। नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। कह रहा है अलाउ करूं या सिक्योर कनेक्शन कुछ यहाँ पे कस्टमाइज करूं या फिर ब्लॉक करूं। मैंने कहा जी ब्लॉक कर दो, ओके किया। कह रहा है किस टाइप का रूल सेट बनाना चाहते हो, डोमेन नेटवर्क पे, पब्लिक नेटवर्क पे या प्राइवेट पे। मैंने कहा तीनों पे लगा दो और क्लिक टू नेक्स्ट। पूछा नाम बताओ, तो मैंने कह दिया जी http ब्लॉक, ठीक है, ये इसका नाम दे दिया एंड क्लिक कर दिया फिनिश पे। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो इसके बारे में दे सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल है। नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश। यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया http ब्लॉक का। नाउ जस्ट कम टू द गूगल क्रोम या कोई सा ब्राउजर ले सकते हो आप, एंड यहाँ पे आके मैं एक्सेस करता हूँ google.com google.com। So now just look at here, यहाँ पे मुझे google.com ओपन नहीं किया। क्या कह रहा है, चेकिंग ऑफ प्रॉक्सी फायरवॉल एंड डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है यहाँ पे रिलोड करूंगा तो इट विल नॉट गोइंग टू बी एक्सेस दैट इज google.com बिकॉज आई एम ऑलरेडी ब्लॉकिंग द पोर्ट दैट इज 80 and 443। तो यहाँ पे हमने किसके बेस पे ब्लॉक किया है, पोर्ट के बेस पे। अगर आप किसी आईपी को ब्लॉक करना चाहते हो तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस ब्लॉकिंग सिस्टम या ब्लॉकिंग जो आपने रूल सेट बनाया है, जस्ट क्लिक टू द प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स, इस पे क्लिक करोगे। नहीं एडवांस नहीं, स्कोप पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है। आपको स्पेसिफिक कोई आईपी एड्रेस ब्लॉक करनी है, आप उनको यहाँ पे ऐड कर दो। लोकल या रिमोट कनेक्शन पे कुछ ब्लॉक करनी है तो आप उनको ऐड कर दो, तो उससे क्या होगी, वो आईपी एड्रेस भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आपको आइडिया हो कैसे करना है। अब इन्हीं सारी चीजों को करने के लिए जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, सब नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल भी बोलते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें काफी बेटर वे में और बेटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ होती है। तो जैसे कि मैंने रूल सेट में फिल्टर हम लगा सकते हैं, जैसे प्रोफाइल बाय फिल्टर, प्रोफाइल बाय फिल्टर बाय डोमेन, फिल्टर बाय प्राइवेट, फिल्टर बाय किससे करना है, तो सारे पब्लिक आएंगे केवल जो पब्लिक पे सेट है। ऑल स्टेट कर दिया मैंने, इनेबल वाले केवल दिखाओ, तो देखो केवल ग्रीन गेन वाले। मैंने कह दिया जी डिसेबल वाले दिखाओ, केवल डिसेबल, है ना। ग्रुप वाइज मैंने कह दिया तो ग्रुप वाइज दिखा देगा। इनके ग्रुप बने हुए जैसे पोर नेटवर्किंग के, तो पोर नेटवर्किंग के ग्रुप केवल दिखाएगा। तो अलग अलग आप देख सकते हो। मैं देखता हूँ विंडो प्लेयर्स के तो 4 हैं केवल, वो भी डिसेबल हो रखे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बना लो। अगर आपको रूल सेट नहीं चाहिए, जस्ट गो राइट क्लिक and delete this rule set. Now let's come to the google.com again, मतलब browser, and just refresh the page. So now just look at here, they are access, I am just going to access, that is the google.com successfully. Clear है? Yes sir. ये होता है आपका तरीका कि आप रूल सेट किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। तो आप रूल सेट डिजाइन करो, उनको यूज करो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। यही अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस में करोगे तो आपको बेटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाएगा और उसको आप बेटर तरीके से यूज कर पाओगे। रूल सेट्स के बाद क्या आता है आपका, हनी पॉट। मैंने आपसे कहा था कि अटैकर को ट्रैप करने के लिए हम क्या करते हैं, हनी पॉट का यूज करते हैं। तो हनी पॉट है क्या, हनी पॉट इज नथिंग एल्स, इट जस्ट लाइक इफ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, लाइक एक हनी है, हनी यानी शहद, शहद से भरा हुआ एक बर्तन है, पॉट है ना, तो उससे एक बर्तन है जो शहद से भरा हुआ है, तो उसमें कौन आएगा, मधुमक्खियां आएंगी डेफिनेटली, राइट। उन मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए मैंने क्या किया, हनी पॉट बनाया, यानी कि एक शहद से भरा हुआ क्या बनाया, अपना बर्तन वहां पे सेट किया। अब यहाँ पे होगा क्या कि शहद तो हम लगा नहीं रहे, हम यहाँ पे लगाते हैं इंफॉर्मेशन या डेटा। डेटा से भरा हुआ एक हमने पोर्ट ओपन कर दिया। अब जब बंदा आएगा जो आपका पर्टिकुलर अटैकर है, अगर वो आता है और इसके ऊपर क्लिक करता है, इसे एक्सेस करने का ट्राई करता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा किस कौन सा नेटवर्क के थ्रू हमारे पास डेटा पैकेट एक्सेस कर रहा है, वो हमारा कौन सा आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, तो हम उस आईपी एड्रेस को फिर ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। So, क्या है honeypot? A honeypot is an attracting technique to fetch and trap the hacker, attacker or a victim, which can be web application, a network system or an access point. Wireless connection which seems like absolutely normal but is created to trap a attacker. किसी भी अटैकर को ट्रैप करने के लिए हम क्या करते हैं, हनीपॉट्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे, द टूल नेम इज पेंटबॉक्स। तो आप करना कैसे, लेट्स सी। फॉर हनी पॉट्स मैं इसको आपको दिखाऊंगा काली मशीन के ऊपर।
तो हम जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो अपने काली के अंदर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जस्ट लॉग इन विद काली एज ए रूट यूजर। आपको हनी पॉट जो रन करना होता है एज ए रूट यूजर करना है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, मैं यहाँ पे गया और मैंने सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया एंड यहाँ पे मुझे हनी पॉट को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पेंटबॉक्स। तो आपको ब्राउजर पे जाना है, स्टेप्स देख लो, जस्ट गो टू द ब्राउजर। तो मैंने फायरफॉक्स यूज किया है एंड जस्ट सर्च हियर, दैट इज पेंटबॉक्स स्पेस गिटहब। तो आपका थर्ड पार्टी टूल है गिटहब का पेंटबॉक्स, जो आपको कहां से मिलेगा, गिटहब से मिलेगा। यहाँ आना है आपको, सबसे पहला लिंक जो है हैक4 करके, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो ओपन करना है इसको, ओपन करोगे तो आपके पास पूरा पेज आएगा, इसमें कोड पे चले जाना है, जस्ट कॉपी दिस कोड। तो ये लिंक कॉपी कर लेना है यहाँ से, जस्ट कम टू द शेल और यहाँ पे आपको कमांड यूज करनी है, दैट इज git clone एंड git clone के बाद आप इसको पेस्ट कर देना। तो ऑलरेडी मेरे पास ये डाउनलोडेड है, so आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड दिस टूल अगेन। सो आपको यही कमांड लिखनी है, अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं आइडिया, तो प्लीज नोट डाउन दिस कमांड। जब डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास एक पेंटबॉक्स करके फोल्डर आ जाएगा, जिसे हम डायरेक्टरी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो फोल्डर डायरेक्टरी आ जाएगी। तो डायरेक्टरी के कहाँ पे है, मैंने जो डाउनलोड की है वो डायरेक्टरी है मेरे इस लोकेशन पर। डेस्कटॉप एंड ls किया मैंने। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे एक फोल्डर आ गया, दैट इज अ पेंटबॉक्स। आपको करना क्या है, cd करके इस पेंटबॉक्स के फोल्डर के अंदर चले जाना, अंदर जाओगे, फिर ls करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी फाइल, दो फाइल मिलेंगी उस टाइम पे, एक ये और एक ये। इसमें आपको कौन सी यूज करनी है, आपको जिप फाइल मिलेगी, इसको अनजिप करने का कोड है, नॉर्मली अनजिप लिखना है यहाँ पे एंड अनजिप के साथ अपने पेंटबॉक्स की फाइल का नाम लिख देना, ठीक है। जैसे आप लिखोगे अनजिप होके आपको ये वाला फोल्डर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब ये फोल्डर आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, इस फोल्डर को सबसे पहले परमिशंस देनी है। तो मैंने यहाँ पे चेंज मोड यूज किया है, चेंज मोड स्पेस 777 क्या स्पेस पेंटबॉक्स हाइफन 1.8। तो इससे क्या होगा, इससे ऑल यूजर्स की रूट प्रिविलेजेस भी मिल जाएंगी, मतलब इस रूट प्रिविलेजेस नहीं, मतलब ऑल यूजर से एक्सेस मिल जाएगा, रूट का भी, सिस्टम का भी, एडमिनिस्ट्रेटर का भी, सिस्टम का भी और यूजर का भी। तो तीनों इसको यूज कर सकते हैं विद रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, तीनों परमिशंस के साथ। तो आप एंटर कर दोगे, या आपको क्या करेगा, एक्सेस दे देगा तीनों भी यूज करने का। अब आपको cd करके इस पेंटबॉक्स के फोल्डर के अंदर एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेके अंदर जाओगे तो ls करोगे वापस से, तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, दैट इज pent.rb करके। इस pent.rb फाइल को आपको यहाँ पे रन कराना है। तो आपको करना क्या है, /ruby बेस्ड टूल है ये, ध्यान रखना, pentbox.rb एंड जस्ट प्रेस द एंटर। एंटर करते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको उनमें से कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अ नेटवर्क टूल्स। तो आपको नेटवर्क टूल्स में जाना है, नंबर 2। उसके बाद आपको मिलेगा नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, हनी पॉट्स, है ना। तो जस्ट सिलेक्ट द हनी पॉट नंबर 3 एंड 3 के बाद कह रहा है कि यू मस्ट टू रन पेंटबॉक्स एज ए रूट प्रिविलेज। अगर आपके पास रूट यूजर आप बनके नहीं कर रहे हो तो ये आप यूज नहीं कर पाओगे बेटर वे में। तो बेटर है कि आप रूट प्रिविलेजेस के साथ ही एंट्री लेना। नेक्स्ट, फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगर करें या फिर आपको कुछ सेट करना है मैन्युअली। मैंने कहा जी फास्ट कर ले, नंबर 1 किया और एंटर कर दिया। एंटर करते ही ने आपका हनीपॉट एक्टिवेट कर दिया विद पोर्ट नंबर 80 के साथ। तो नाउ लेट्स चेक द आईपी फर्स्ट। IF config, आई मिस्टेक। तो मुझे आईपी है 223.129। ओके, मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने एक अनदर अपनी अटैकर मशीन ओपन करी। तो आई एम जस्ट सेइंग, जैसे मैं अटैकर मशीन
मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया, फायरफॉक्स, एंड इसकी आईपी को यहाँ पे डाल दिया 192.168.223.129 एंड जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करते ही ये थी ना आईपी, अच्छा आपको एक काम करना पड़ सकता है, हो सकता है इस नेटवर्क को आपको स्विच करना पड़े ऑन द, ओके तो चलो मैं इसको स्विच कर देता हूँ, कनेक्शन टू द ब्रिज 1। जब कनेक्शन स्विच हुआ तो एक बार दोबारा चलाना पड़ेगा हमें। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1। अब इसकी क्या आईपी है 1.15, बढ़िया। सब चलते हैं अटैकर मशीन पर, इसे ट्राई किया एक्सेस करने का 1.15 को, एंटर किया, क्या लिख के आ गया एक्सेस डिनाइड, HTTP रिफ्रेश लॉगिन है ना, एक्सेस डिनाइड आ गया। यहाँ पे देखो मुझे उस बंदे की आईपी पता चल गई, दैट इज यूजिंग 1.45। तो इफ आई एम गोइंग टू क्रॉस चेक दैट आईपी, अब यहाँ पे देख सकते हो आ गया हमें क्या करना है, इसकी आईपी चेक करनी है ना, ले लेते हैं ब्राउज़र, सॉरी टर्मिनल, एंड जस्ट IF config and press enter। now look at here 1.45 है ना, 1.45 यूज कर रहा है और ये है उसका पोर्ट नंबर जिससे यूज कर रहा है। तो मुझे बता रहा है कि मैंने मोज़िला में ओपन किया था इसे, तो मुझे साफ साफ बता रहा है मोज़िला के अंदर इसको ओपन किया गया है, जो कि मशीन किस टाइप के, लिनक्स की x86/64 में, एंड मैक्रो ड्राइवर यूज हो रहा है किसके अंदर, फायरफॉक्स के अंदर विद वर्जन ऑफ 68। ओके वर्जन में 68 है। दूसरा मुझे और क्लिक क्या दे रहा है, इंग्लिश कौन से आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, जिप कोड किया है कि नहीं किया है, रेट ऑफ सीक्वेंस कितना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको करना क्या है, जैसे मैंने इसको अब कर दिया बंद, ठीक है, एक्सेल ले लेना। मैंने एक बार दोबारा से स्टार्ट किया, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, एंड इस बार हम करेंगे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2 ले लिया, कह रहा है कौन पोर्ट के ऊपर करना चाहता हूँ, मैंने कहा जी 80 के ऊपर करना चाहता हूँ, एंटर किया, फॉल्स मैसेज, तो मैंने लिख दिया वेलकम अटैकर, स्वागत है, ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद कह रहा है इंस्टीट्यूशन बनाना है, मैंने कहा नो। लॉग बनाया उसका, मैंने कहा नहीं, लॉग फाइल मत बनाओ। कह रहा है बीप साउंड दूं, मैंने कहा नहीं, नहीं चाहिए। एंटर किया, पोर्ट नंबर 80 पे स्टार्ट हो गया, लेट्स कम एंड सी द रिजल्ट। वापस से आ गए, मैं यहाँ पे ब्राउजर पे दोबारा चला गया, मैंने यहाँ पे इसकी आईपी डाल के एंटर किया। एंटर करते ही इस बार ये क्या मुझे मैसेज शो करेगा, वेलकम अटैकर, स्वागत है, एंड दीज आर द आईपी एड्रेसेस जो वहां पे लोकेटेड एट 1.45। एंड आपको बता रहा है एक्सेप्ट किस में किया है, HTML फॉर्मेट में ओपन हो रहा था, एंड मोज़िला के अंदर आपको पता चला कि 5.0 वर्जन यूज कर रहा है, जिसमें ये आपको क्या है डिटेल, एंड दिस इज द zip code डिटेल्स। क्लियर गाइस? Yes, sir.
इसे कहते हैं हनी पॉट। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो, उसका किस तरीके से यूज करते हो। फिर इसमें जो लास्ट है आपका, वो क्या है, लास्ट पार्ट है आपका जिसमें मैंने एक वो दिखा रखा है, डिफरेंस की वीडियो दे रखी है, जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हब क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं। ठीक है, Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. Hello, everyone. In this video, we're going to talk about the difference between a hub, a switch, and a router. Now, all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now, the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now, a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast that data to every port that has a device connected to it. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though the data was not intended for them. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Now, a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it, and it stores these physical addresses, called MAC addresses, in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub, where a hub would just rebroadcast that data to every port. So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port. And then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it. And a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. Now, hubs and switches are used to exchange data within a local area network. For example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet. Because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses. And hubs and switches do not read IP addresses. So that's where the router comes in. Now, a router does exactly what its name implies. A router is a device that routes or forwards data from one network to another based on their IP address. When a data packet is received from the router inspects the data's IP address
and determines if the packet was meant for its own network or if it's meant for another network. If the router determines that the data packet is meant for its own network, it receives it. But if it's not meant for its own network, it sends it off to another network. So a router is essentially the gateway of a network. So here we have a private network with its router, and we'll refer to this as the red network, indicated by the red colored screens on the computers. And over here, you're going to have different data packets, indicated by their different colors, which represents different IP addresses, and they are going to be entering the red network's router from the internet. Now, the router is only going to accept the red data packets because they are the only ones that are intended for this network. So all of the other data packets, the yellows, blues, greens, etc., will be rejected by this router because they were not intended for this network because their IP addresses were not meant for this network. Now here is an expanded view of routers over the internet. There are 4 networks here, indicated by their different colors, and each network has their own router, along with their hubs or switches and their computers. So right now, as you can see, each network is just exchanging information within their own network. Their data is not going out on the internet, so they are not communicating with other networks. They are just exchanging data within their own network using their hub or switch. Now let's go ahead and exchange data between different networks. So let's say, for example, that this computer here on the red network wants to communicate with a computer here on the blue network. So for this to happen, the data packet has to leave their own network and go out on the internet. So the computer sends their data and it goes to the network's router. And once the data packet reaches the router will look at the IP address of the data packet and then forward the data out on the internet to the next router, and then make its way to the blue network's router, and then to the intended destination computer. So in a nutshell, this is how routers work. So in conclusion, hubs and switches are used to create networks, while routers are used to connect networks. समझ में आया? Yes, sir. So guys, ये था आपका फायरवॉल का पार्ट. फायरवॉल यहाँ पे फिनिश होती है. तो now I'm just going to share this note with you. Then फिर आगे का पार्ट करते हैं. So देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज अ सेशन हाईजैकिंग का. ठीक है, तो सेशन हाईजैकिंग में जो बेसिकली प्रोसीजर है, इसमें हम कुकीज बेस पे सेशन को कैप्चर करेंगे. तो मैं आपको जो यहाँ पे सेशन हाईजैकिंग, वैसे तो आपका सेशन हाईजैकिंग कंप्लीट एक OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटी भी है, जो आप जब WPTI का वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो उसके अंदर आपको कंप्लीट सिखाई जाती है. बट यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है सेशन हाईजैकिंग का, तो किस तरीके से करना है लेट्स सी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक कुकी एडिटर इसके अंदर इंस्टॉल कराना पड़ेगा. सो आई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अ कुकी एडिटर व्हिच इज नेम कहां है नहीं है, इट इज माय कुकी एडिटर एक्सटेंशन. ओके लेट्स सी. ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास, वहां नहीं है तो मैं वहां पे इंस्टॉल कर लेता हूँ. तो यहाँ लिख लेते हैं कुकी एडिटर क्रोम. सो कुकी एडिटर आपको ऐड करना है, तो कुकी एडिटर ऐड कर देने, ऐड एक्सटेंशन.
सो कुकी एडिटर मेरा ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसमें कुकी एडिटर में, जस्ट ये रहा कुकी एडिटर, ठीक है। आप एक साइट ओपन करो, सबसे पहले इसको पिक कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए। नाउ आपको ओपन करनी है, जस्ट लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस दैट इज अ फेसबुक। तो मैंने फेसबुक का यहाँ पे एक फेक अकाउंट ओपन कर रखा है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस द फेसबुक अकाउंट। मैंने यहाँ पे फेसबुक को ओपन किया एंड फेसबुक के साथ मैं कुकी एडिटर पे चला गया एंड कुकी एडिटर पे जाके मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे दो डेटा आपको उठा के कॉपी करना है, जैसे कि सबसे पहला है सी यूजर एंड दूसरा जो है दैट इज एक्सेस, ठीक है। तो मैंने सी यूजर पे गया, सी यूजर में मुझे सी यूजर मिल रहा है जिसका वैल्यू है ये, तो मैं इसकी वैल्यूज को उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने फायरफॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुकी एडिटर है, मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, ठीक है। जब रिफ्रेश इट अगेन तो मेरे पास कोई लॉगिन नहीं है यहाँ पे, मैं अपने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे ऐड किया, सबसे पहले क्या ऐड किया, सी यूजर जो वहां पे लिखा हुआ था, C_यूजर एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया उसकी वैल्यू को, ठीक है, ऐड। उसके बाद मैं वापस वहीं पे गया और मैंने यहाँ से सी यूजर पे एक्सेस जो है उसको ओपन किया एंड एक्सेस को यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया, पूरा एक्सेस की वैल्यू कॉपी करी एंड वहां पे आया मैं, यहाँ पे आके मैंने वापस से एडिटर के अंदर ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे एक वैल्यू दी एक्सेस एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू को पेस्ट कर दिया एंड क्लिक कर दिया ऐड करने के बाद नॉर्मली मैंने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया एंड नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे मैं सक्सेसफुली एक्सेस हो गया उस वाले अकाउंट में जो कि वहां पे क्या था, ओपन था। समझ में आया गाइस कैसे किया? तो अगर कोई भी आपका सेशन चोरी कर लेता है, सेशन आईडी चोरी कर लेता है, एक्सेस एंड कुकीज को गेट कर लेता है, तो उस केस में आपका क्या कर सकता है, अकाउंट लॉगिन कर सकता है। अब ये तब तक लॉगिन रहेगा जब तक मैं यहाँ से लॉग आउट नहीं कर देता। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करके या क्लोज कर दूंगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ गए, मैंने क्लोज, वहां से मैं लॉग आउट कर दूंगा, तो मैं लॉग आउट तो नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लॉग आउट कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा फेसबुक। आया समझ में कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम यूज करते हैं किसमें, आपके सेशन हाईजैकिंग में। सो आई होप सो कि आपको सेशन हाईजैकिंग में अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक आप किसी भी अकाउंट पे चले जाओ, जैसे आप गूगल पे चले गए, अमेजोन पे चले गए, कुकी एडिटर डाल लो, कुकी एडिटर आपके जो भी कुकीज आप डालोगे वो यहाँ पे गेट कर लेगा, उसके बाद उन कुकीज को उठाओ और दूसरे ब्राउजर में जाके पेस्ट करो, अगर वहां पे लॉगिन मिल जाता है इट मींस वहां पे सेशन हाईजैकिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी वर्नेबिलिटी कैसी होती है कि जैसे कि आपने सेशन वहां पे एक्सपायर नहीं हुआ, आपने यहाँ से तो लॉग आउट कर दिया एंड वहां पे जब आपने देखा तो वहां पे लॉग आउट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में वहां पे सेशन हाईजैकिंग की वर्नेबिलिटी निकलती है, ठीक है। यस सर। सो ये आपका सेशन हाईजैकिंग का पार्ट था, एक छोटा सा प्रैक्टिकल रहता था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी का जो पार्ट है, आपके 4 मॉड्यूल जो रहते हैं वो हम करेंगे अपने कमिंग सेशंस में। तो वी होप सो कि हमारा दिसंबर में ये जो पूरा कोर्स है ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है।